Hello, Assalamu alaikum, and welcome to the Pavilion. You're watching A Sports and Sports and the ARY Zap app. And our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. And the news out of Pune is that India have won another spectacular game against Bangladesh. And what a century there by Virat Kohli. With that, let me first bring in my esteemed panelists, my fellow Pavilion mates. I've got with me four former captains, four outstanding cricketing minds who have been analyzing games with us throughout this journey. First up, I've got the young, dynamic, one of the finest fielders, a great finisher of games, Shoaib Malik. Shoaib, assalamu alaikum and welcome. Assalam. Good evening. Assalamu alaikum, everyone. With that, I've got Mr. Dependable. When the entire Pakistani batting order would be in disorder, he would hold on and keep one end going. The most successful Test captain in Pakistan's Test cricket history. I've got Misbah ul Haq. Assalamu alaikum, Misbah, and welcome. जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. मेरे अगले मेहमान कहते ये हैं कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकाल लेना चाहिए, और इनकी 10 की 10 उंगलियां जो हैं वो टेढ़ी हैं क्योंकि इन्होंने दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स के ज़माने में विकेट कीपिंग की पाकिस्तान के कप्तान भी रहे हैं, पाकिस्तान की बहुत सारी गेम्स इन्होंने ख़त्म भी की हैं. ही इज़ द सिल्वर फॉक्स ऑफ द पेविलियन. आई गॉट मोइन खान. मोइन, वेलकम. उंगलियां दिखा दें. थैंक यू वेरी मच. मैं उंगलियां दिखा दूं. आपने 10 की 10 उंगलियां बोली, मेरे अंगूठे बिल्कुल सीधे. सॉरी, माय अपॉलजीज. 8 उंगलियां. अपना रिकॉर्ड करेक्ट स्टैट सही करूं. 8 उंगलियां. वो पता है क्यों? घर जाते हैं ना तो वो इजली वो सीधे हैं दोनों. All right, ladies and gentlemen. And with that, I've got the cricket royalty himself, the Sultan of Swing, the undisputed king of all-rounders, a man who's given us so many great memories throughout his career while representing Pakistan, captain Pakistan, and boy, oh boy, oh boy, was he fast when he bowled. I've got Wasim Akram. Wasim, welcome. Good to have you back here. Thank you very much, and assalamu alaikum. Good evening, everyone. दुनिया में जहाँ भी हैं आप. राइट. और इससे पहले कि हम आगे चलें, लेट्स टेक अ लुक एट द मैच समरी. आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. आज का मैच पुणे में कुछ इस तरीके से रहा. बांग्लादेश ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया. उन्होंने अपने ओवर्स, अपने टोटल इनिंग्स 256 रन्स, अच्छा स्टार्ट मिला. तंजील हसन, लिटन दास, they put up a good opening start, 51-66 contribution, and then Mushfiqur and Mahmudullah coming to the party with 38-46 down the order. 256 was not enough for this Pune wicket. There should have been 300 plus. And in response, well, India finished this one up in 41.3 overs. And well, look at that. Rohit Sharma also scoring. Gill also coming to the party. And that Virat Kohli century. He was toying with Bangladesh bowlers to get that century. And boy, did he get that century. And with that, India march on. They look really, really fantastic. इसके साथ ही वक्त हुआ है कि हम नजर डालें पॉइंट्स टेबल पे. All right, now we have, there you go. There's the points table brought to you by Pepsi. Right on top, New Zealand sitting with 4 games, 4 wins, 1.92 net run rate. India trailing right behind, 4 matches, 4 wins. Also very close in that net run rate. South Africa sitting at number 3 after that defeat to Netherlands, but Pakistan still holding on to that 4th position. England at 5, Australia at 6, Bangladesh at 7, Netherlands at 8, Afghanistan 9, and Sri Lanka 10. याद रहे कि टॉप 4 टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल्स की तरफ जाएंगी. And that's your points table. And Wasim, let me just bring this to you straight out. India is looking just unstoppable. They really are. I mean, it's not कि सिर्फ ये वर्ल्ड कप में उनकी प्लानिंग थी. ये प्लानिंग काफ़ी अरसे से उनकी चल रही थी. एशिया कप से पहले की भी, फिर एशिया कप के दरमियान उनकी एक सीरीज़ आई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. उन्होंने अपने जो लड़के नहीं थे खेले या जिनको देखना था उनको उसमें ट्राई किया, और उसमें सूर्या कुमार ने उसमें भी स्कोर किया. हैंस वो स्क्वाड में वापस आया. और टुडे टॉकिंग अबाउट इंडियाज overall performance in general, controlled, everybody knew their role, they looked the part, they controlled the game from the get-go. And of course, अगले मैचों में इंडिया पे थोड़ा सा different pressure होगा. I hope हार्दिक पांड्या को just निगल हो, कोई ज़्यादा सीरियस इंजरी ना हो. अगर खुदा ना खासा उसको इंजरी होती है तो इनके कम्बिनेशन में फ़र्क आएगा. बैटर खिलाएंगे, ऑलराउंडर खिलाएंगे, क्या करेंगे. खैर वो बात की बात है. बट आज की परफॉर्मेंस, लाइक आई सेड, द मिनट दे वन द टॉस दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग. दे फील्डिंग भी की थी, दे वर फाइन. Well, Bangladesh won the toss. Yeah, I know, but रोहित ने कहा था अगर हम भी बॉलिंग करते, बिल्कुल हम भी पहले बॉलिंग करते. Correct. So, but उनको जो चाहिए था वो मिला. उसके बाद they started off well, Bangladesh 92 for none, and then same old story, middle order falling apart. They just had to bat. And one thing I could never understand, okay, they're missing their skipper, and the way they got out, ये पहली विकेट गिरी इनकी, और I think ये तंजीम थे. और उसके बाद बस
अगली गेंदें आपने अच्छी विकेट है, nothing is happening from the pitch. Okay, that can happen to anyone. Just play with the straight bat, try to hang on there. But again, inexperience, I suppose. सारी चीज़ें आप अपने सीनियर प्लेयर्स पर डिपेंड नहीं ना करोगे उन पे। अब ये यंग लड़कों को या नहीं है, महेदी हो गया, नजमुल हसन शांटो हो गया, ये तौहीद हो गया, इनको कहीं ना कहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा। अदरवाइज अब साकिब के होने से ना होने से क्या, वो 2 प्लेयर मिस किए, एक 10 ओवर और एक प्रॉपर बैटर हु बैट्स एट नंबर 4. एंड वन थिंग, प्लीज कैन समबडी एक्सप्लेन टू मी फ्रॉम बांग्लादेश. I love the place, I love the people, I enjoy their cricket too. How come your most experienced player, a batter, when you're having trouble in the middle order, not now, from last whenever I remember, Mahmudullah 7-8 पे क्यों खेलता है? He's got good technique, he's experienced. I understand he's a finisher, but you are not doing anything in the middle. Finisher की जरूरत तब पड़ती है. इवन मुशफिक छठे पे अच्छी फॉर्म में है वो proper आज batter साकिब है. नहीं था तो वो छठे पे आया और उस वक्त तक मैच ऑलमोस्ट जो इनिशिएटिव मिला था वो उनके हाथ से निकल गया. आप चेंजेस थोड़ा सा तो आप चेंज कर सकते थे कि शाकिब नहीं है, पार्टनरशिप लगी हुई है, मुशफिक अच्छी फॉर्म में है, तो इन दोनों को आप प्रमोट कर लें ताकि वो वहाँ पे गेम को कंट्रोल कर सकें. बिल्कुल. अब ये चीज़ें तो अब कप्तान कोचेस जो बाहर बैठे हैं ये तो उन्होंने डिसाइड करना है या कैप्टन को सजेशन देना. आज के मैच में तो पार्ट टाइम कप्तान थे बिकॉज शाकिब डिडंट प्ले, सो दैट वाज अ बिग ड्रॉबैक. लाइक आई सेड, दे मिस्ड 2 players, 10 overs and his batting. Shoaib, let me bring this to you. चूंकि आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी खेले हुए हैं, आपका काफ़ी बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन भी रहा है. What is the problem that is going on there? Is there problem at the cricket level, cricket board level या टीम के अंदर, या what are the, I mean they are a good team. This is not that best. Let me extend this question. So आप काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसमें आपको टैलेंट नज़र आता है अपार्ट फ्रॉम द नेम वी नो? बिल्कुल टैलेंट है, बहुत सारे अच्छे यंगस्टर्स हैं, बट जो यहाँ पे वर्ल्ड कप स्क्वाड है यही बेस्ट है उनके. अच्छा. और यही जब उनकी हम लोग लीग भी खेलते हैं जाके तो मोस्टली दीज प्लेयर्स दे आर परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली. बट वो जो लीग है वो T20 है. T20 में आपको जो है छोटी परफॉर्मेंस भी इट्स अ बिग परफॉर्मेंस. तो छोटे फॉर्मेट के लिए देर स्टिल ओके. और सेकंड ये चीज़ है कि जब उनके पास होम कंडीशंस में टीम्स जाती हैं खेलने के लिए, उसमें उनको अपनी जो कंडीशंस है उसको बेहतर बनाना पड़ेगा. So, वो कंडीशन से भी क्या है, वो है कि टर्निंग ट्रैक्स होते हैं, टर्निंग होते हैं, लो होते हैं. अच्छा, लो और अगर आप मीरपुर में खेल रहे हैं, हम जब लीग खेलते हैं तो सम टाइम 110 रन बनाने भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं 20 ओवरों में. बॉल सीम भी हो रहा होता है, बॉल स्पिन भी हो रहा होता है. तो इस तरह की चीज़ है. चिटागोंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छी है एज़ कम्पेयर टू मीरपुर जो ढाका उनका कैपिटल है. तो मुझे ये लगता है कि जब टीम्स जाती हैं वहाँ टूर करने तो इनको कंडीशंस बेहतर देनी चाहिए. एक ये एलिमेंट है. दूसरा, अगर आप उनके डोमेस्टिक लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे भी जो ऊपर के जो अच्छे स्टेडियम्स हैं उनके, जो जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाती है, वहाँ पे भी सेम पिचेस है. तो इनको जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाना पड़ेगा ताकि ये लॉन्ग रन के लिए इनके, देखें छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस ज़रूर आती हैं. जैसे टॉप के 2 बैटर्स थे, दे बोथ ऑफ देम प्लेड ब्रिलियंट इनिंग्स, बट उसके बाद फिर वो जो मोमेंटम था उसको आगे नहीं लेके गए. तो वो यही वजह है कि सारी कंडीशंस में नहीं खेलते. तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ बेहतरी लाने की ज़रूरत है. जी मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ी गलती, एक आइडियल स्टार्ट मिला था, एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी टॉस जीत के, बैटिंग की परफेक्ट कंडीशंस थी, परफेक्ट स्टार्ट मिला. जो अभी बात की है तमाम पैनलिस्ट ने, जो मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हुआ, आई थिंक जो डॉट बॉल्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट. तकरीबन आधे ओवर तो उन्होंने डॉट बॉल खेले और इसी आधे ओवर अगर आप जी बिल्कुल थोड़ा सा करता हूँ, फिर आप कैरी ऑन कीजिएगा. जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, क्योंकि वो टफ पिचेस होती हैं तो वहाँ पे आपको डॉट बॉल्स खेलने पड़ते हैं. तो कोई भी बैटर जाता है वो सेट नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक आप डॉट बॉल्स नहीं खेलेंगे आपको समझ नहीं आती. फिर बाउंड्रीज से रन्स होते हैं जो हमें उनकी नेशनल टीम में भी नजर आता है. जी डॉट बॉल से मैं ये कहता कि प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है. जो बैट्समैन ड्रेसिंग रूम में बैठा होता है, इतने ज़्यादा प्रेशर, इवन नॉन स्ट्राइकर वाले के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है जब बाउंड्रीज नहीं आ रही होती है या रन बॉल नहीं मिला था, स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही होती. तो वही देखा मिडिल ऑर्डर में यहाँ पे फंस रहे हैं. अफगानिस्तान की टीम भी इसी तरह फंस रही है, बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलती है. तो इस क्रिकेट में आप डॉट बॉल्स खेलेंगे तो नेचुरली आप ऑलरेडी इनवाइट कर रहे होते हैं कि आपके ऊपर प्रेशर आ जाए. उसमें विकेट गिरती है तो आने वाले के ऊपर भी और नॉन स्ट्राइकर वाले के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है. सो माय क्वेश्चन इज बिफोर यू गो टू द ब्रेक, क्विक वन. ऑल 3 द बैटर्स बैटिंग करते, दोनों ग्रेट बैठे हुए हैं. क्या अब यंगस्टर, यंग जनरेशन है, दे मोस्टली इनटू T20s, आंदे
T20 अगर उन्होंने ये लंबी क्रिकेट सीखनी है, ये सिंगल रोटेशन कैसे होती है? अगर आप तो 2 विकेटें आपकी गिरी हैं पहले 8 ओवरों में, आप बैटिंग करने गए हो या आप गए हो, सो आप 2-4 ओवर तो फंसोगे बिकॉज एकदम सारे फील्डर ऊपर होते हैं। सो वो प्रेशर से कैसे ऑफ होना टू रोटेट द स्ट्राइक, हाउ डू यू डू दैट? देखिए वसीम भाई, यहाँ पे मैं ना विराट कोहली की एग्जांपल देना चाहता हूँ। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम इंडिया, हिज नेम इज सचिन। सो ही हैज़ लॉट ऑफ एकेडमीज। तो विराट ने वहाँ से खेलना शुरू किया। सचिन की academy से? जी, सचिन Not जो as in मेरा दोस्त Sachin है। Tendulkar, but a friend of a friend of mine Sachin. from India, New he's Delhi. from Delhi. Yeah. तो उसने कहा कि यार हम लोग मैच देख रहे थे साथ में बैठे हुए, तो ही स्कोर्ड 100 अगेंस्ट पाकिस्तान 2015 वर्ल्ड कप में एडिलेड में। Yeah. तो मैं इंडिया में था, आई वाज वर्किंग फॉर वन ऑफ द चैनल। तो मैं और वो बैठ के मैच देख रहे थे, तो उसने जब 100 बनाया ना, सो ही रेज्ड हिज बैट। तो सचिन जो मेरा दोस्त था, उसने मुझे कहा कि ये अभी से नहीं इसको आदत, ये इसको क्लब क्रिकेट से जब ये मेरे पास खेलता था, ये तब से जो है इसको नॉट आउट आना, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं, दूसरी अगर बैटिंग कर रहे हैं 100 से पहले अगर स्कोर पूरे हो गए हैं, सो ही ये उसने वहाँ से अडेप्ट की, वहाँ से सीखा। तो ये आपको क्लब क्रिकेट जो है वहाँ से सीखना है। और देखें, आपको कुछ आता हो या ना आता हो, यू स्टिल कैन सर्वाइव इन मॉडर्न डे क्रिकेट एज अ बैटर, अगर आपको स्ट्राइक रोटेशन आती है। आप मेरे सामने एक एग्जांपल है, इवन T20 की एग्जांपल लेते हैं वसीम भाई। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था मुंबई में, वर्ल्ड T20 का 2016 की बात है। उसमें 235 रन बने थे और वो चेज हो गए थे। द डिफरेंस वाज सिंगल्स, नॉट द बाउंड्रीज। सो स्ट्राइक रोटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ बैटर। तो क्रिएट इसी तरह किया जाए। वसीम भाई, आपने कि आपको जब आप फील्ड देखते हैं, छोटी सी 1 मिनट की इजाजत, जी चाहते 5 फील्डर देखें, नॉर्मली जब मिडिल ऑर्डर बैटिंग कर रहे हो तो 5 फील्डर सर्कल में होते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा सेट होने के बाद आपके पास चांस होता है कि एक आधा चांस ले, आपको फील्डर वहाँ से निकलवाना होता है, कोई ना कोई फील्डर रिमूव कराना होता है, या तो आप कोशिश करते हैं कि ओवर द हेड हिट मारें, फिर वो एक फील्डर पिछले, तो आपको एक गैप बनना शुरू हो जाता है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मिडिल ऑर्डर के लिए कि उनको लाइक इस तरह की पोजीशन में आना चाहिए जहाँ पे वो प्रेशर क्रिएट कर सके और फील्डर्स को रिमूव करा सके। और इससे पहले कि हमारे पैनलिस्ट मजीद कोई गुफ्तगू करें, हम ले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. पुणे से खबर, इंडिया ने अपना मैच जीत लिया बांग्लादेश के खिलाफ, and Virat Kohli played a great knock there, toying with the Bangladeshi bowlers. Let's talk about the Indian bowling though. बेहतरीन तरीके से मोइन ने इंडियन बॉलिंग ने आज ऑपरेट किया अगेन। जाडेजा picking up 2 wickets, Siraj picking up 2 wickets. The whole, I mean, everybody is performing in that. Bumrah also picking up his शुरू wickets. में अच्छी नहीं हुई बॉलिंग, उन्होंने अच्छा एस्टैब्लिश की इनिंग, लेकिन अगेन मिडिल ऑफ द इनिंग जहाँ स्पिनर्स आए, आते कुलदीप यादव ने आते ही अपने नहीं शुरू के ओवर में विकेट ली, तो आते वहीं से कंसिस्टेंट प्रेशर डालना शुरू कर दिया था और उसके बाद जडेजा ने बड़ी अच्छी विकेट टू विकेट बॉलिंग की। आई थिंक दे वर स्पॉट ऑन, और एक्स्ट्रा रन्स भी नहीं कोई हमने ऐसे सच देखे। कंसिस्टेंट जो प्रेशर था वो नज़र आ रहा था कि कॉन्स्टेंटली डाल रहे थे, जिसकी वजह से विकेट भी मिली। और जब नेचुरली विकेट गिरती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे मैंने अभी बात की थी डॉट बॉल्स की, डॉट बॉल्स भी होनी शुरू हो गई, वहीं से प्रेशर बिल्डअप हो गया। आई थिंक उस पोजीशन में आके इंडियन बॉलर्स ने आई थिंक उस कंडीशन को बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया है, और उनको पता था कि अभी अंडर प्रेशर आ गए, तो विकेट टू विकेट बॉल करके 2 कैचेस, आउटस्टैंडिंग कैचेस है। जडेजा ने जिस तरह कैच पकड़ा, KL राहुल का एक आउटस्टैंडिंग कैच था ऑन द लेग साइड, 100 कैच पकड़ा। ये तमाम चीज़ें जब आप मिलाएंगे तो यही टीम की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, नज़र आता है कि क्या एम लेके आए हैं मैच में। तो आई थिंक एक कमज़ोर ओपोनेंट थी, और इसका पूरा इस मैच में यानी इसमें जो भी मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते थे इंडियन बॉलर्स ने यहाँ पे किया है। Misbah, let me bring this to you. Do you think that the Indian bowling has been really tested in this World Cup so far? कोई उनको मतलब चैलेंज मिला है अभी तक सही तरीका का? Has anybody really challenged them? या should we expect more challenges in the days ahead in the next games? अभी तक नहीं हुआ। आज थोड़ा सा मुझे लगता है जैसे ओपनिंग पार्टनरशिप हुई और उसके बाद काउंटर अटैक किया है बांग्लादेश के ओपनर्स ने, तो थोड़ा अंडर प्रेशर उस टाइम नज़र आए हैं, क्योंकि 6 ओवर आराम से वो खेले हैं, 7वें 8वें ओवर में एकदम से उन्होंने अटैक किया, देखा है कि बॉल स्विंग नहीं हो रहा उस तरीके से, और उसके बाद जैसे उन्होंने एक्सेलरेट किया तो ऐसे लगता था कि अगर वो इसको थोड़ा सा आगे ले के जाते इस पार्टनरशिप को, तो
इंडिया जो है प्रॉब्लम में आ सकती थी, बट अगेन वही इनएक्सपीरियंस साइड थी, स्पेशली जिस पिच पे थोड़ा सा बॉल स्किड कर रहा था उस पिच पे रॉन्ग शॉट सिलेक्शन, ओपनर स्वीप करते हुए आउट हुए। थ्रू द लाइन देखें जितने भी शॉट बड़े ज़बरदस्त मारे ओपनर्स ने, अटैक किया निकल के भी एकदम से। उन्होंने जैसे ही देखा कि अब बॉल बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, बल्ले पे आ रहा है, स्विंग नहीं है, मेरे ख्याल में काउंटर अटैक बड़ा ज़बरदस्त था। तो ये टीमें देख रही होंगी कि अगर हम इनिशियली अच्छा स्टार्ट करते हैं तो स्पेशली इनकी फास्ट बॉलिंग बुमराह के अलावा उस तरीके से थ्रेट नहीं है, अंडर प्रेशर आ जाती है। बट देन कुलदीप यादव ऐसे बॉलर हैं कि जहाँ पे आके थोड़ा सा टीमों को ध्यान से खेलना पड़ता है, अदरवाइज़ इस पे आप अटैक कर सकते हैं इस बॉलिंग लाइनअप। इसीलिए मेरे ख्याल में आप देखेंगे इंडिया चांस नहीं लेता, अच्छी पिच आती है तो वो कोशिश करते हैं कि बैट सेकंड करें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे हुआ है 336 इंग्लैंड ने यहाँ पे चेज़ किया इनके अगेंस्ट इसी वेन्यू पे, तो वो चीज़ें जब उनके कंट्रोल से बॉलिंग में निकलती है ना तो फिर वो उनके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है। दो प्लान्स के साथ हैं वो जी। एक ऊपर से मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, ये उनका ए प्लान है। अगर ये अच्छा चला जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, जो उनका 5th और 6th बॉलर है उसको लेके आते हैं ताकि उसके थोड़े से ओवर्स निकल जाएं। जब वहाँ पे कोई पार्टनरशिप लगती है फिर वो कुलदीप को लेके आते हैं, दो राइटी हो तो फिर वो जडेजा को ले आते हैं। तो उनके पास ए बी प्लान, जो भी टीम जब ये दो प्लान्स अच्छा खेल जाएगी ये बॉलिंग अटैक स्ट्रगल करेगा, लेकिन अभी तक वो हिट नहीं हुई वो वाली चीज़। अगर आपने ऊपर से अच्छा खेला है तो जो उनका बी प्लान था स्पिनर्स वाला, कुलदीप और जडेजा, उन्होंने आके जो है वहाँ पे विकेट्स ले लिए हैं, वो टारगेट को उस जगह पे नहीं जाने दिया जहाँ पे वो अंडर प्रेशर इतनी स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग लाइनअप आ सके। तो अभी तक वो एक्सप्लॉइड नहीं हुई है, जिस दिन वो एक्सप्लॉइड होगी तो ये इवन बैटल होगी, और वो आई एम श्योर टीम जो है इस पर ज़रूर काम कर रही होंगी और देख रही होंगी। तंजीद हसन the lefty जो बांग्लादेश के हैं, some of his shots, especially the aerial route that he took today with seam, some of those shots were really glorious. So much potential in this young man. There is. I think that's why उसके साथ ये consistency से जा रहे हैं. I think that was his first 15 ODI cricket. So after today, we all realize that talent is very much there. He needs a bit more experience and of course more cricket. And I think ये credit to Bangladesh selectors that they picked this guy and they persisted with him. Because 8 मैचों में 6 मैचों में कुछ खास इसने impress नहीं किया हमें. But today was his day to shine and tell the world that he has arrived. Confident shots Very खेले confident हैं और बहुत ज़बरदस्त ऊपर से भी मारा, जैसे रोहित शर्मा नज़र आ रहा है हमें इस वर्ल्ड कप में, या ओवरऑल भी अगर देखें कि अच्छी लेंथ वाले बॉल को वो ऊपर से मारते हैं, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है कि थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ जब बॉलर जाते हैं तो पिकअप शॉट भी बड़ी ज़बरदस्त मारी। उन्होंने बाउंसर को भी एक छक्का मारा, एक नॉर्मल गुड लेंथ के बॉल को, तो ही हैज़ दोज शॉट्स। ऑब्वियसली जैसे बात कर रहे हैं वसीम भाई, विद एक्सपीरियंस इस इनिंग को 100 में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर कर देते आज तो कोई चांस बांग्लादेश का वो बेहतर। अपने सीनियर्स को ही फॉलो करना है. लिटन दास इज क्वाइट सीनियर नो, बड़े अच्छे से खेल रहा है. जो उसने शॉट मारी है आज, जो शुभमन गिल से आउट हुआ है एक्स्ट्रा वो मिड ऑफ पे, ना ज़रूरत थी ना सिचुएशन की रिक्वायरमेंट थी, एंड ही वाज बैटिंग ऑन 66. जस्ट बैट ऑन एंड ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड. यंगस्टर्स क्या सीखेंगे? इन्होंने तो प्राइम पहले उन्होंने बड़ी अच्छी शॉटें मारे हैं, गैप शॉटें, स्वीप मारे हैं, एक्स्ट्रा कवर मारी है. सडनली वो रश ऑफ ब्लड के आप फील्डर को क्यों टेक ऑन कर रहे हैं? वसीम भाई ने एक और बात बड़ी अच्छी की थी जो महमूदुल्लाह को खिला रहे, 7 नंबर में बैटिंग, मोस्ट सीनियर, मोस्ट वो कई दफा 8 में भी आया मोइन जी. उनको आती आउट टू बिल्ड द इनिंग, तो उसको इतना नीचे लेके आ रहे हैं, कोई यूटिलाइजेशन वहाँ पे नहीं है. एंड फिनिश तो कर रहा है, बट बीच में जहाँ पे इतनी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, डॉट बॉल्स की वजह से तो सारा मिस हो जाता है. उसको शुरू में ना इजाजत नहीं मिलती. बेसिकली दोनों एक्सपीरियंस प्लेयरों को बेसिकली एज अ फिनिशर वो यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन यही तो सिचुएशन के साथ आपने चेंज, जब आपको एक स्टार्ट मिल गया और बीच में शाकिब नहीं है एक्सपीरियंस प्लेयर, तो आपको मौका है कि यार मुशफिक की फॉर्म को यूटिलाइज करें और महमूदुल्लाह जो अच्छा खेल रहे हैं पिछले मैच में. Fair enough. But now let's talk about the unstoppable Indian batting. And Rohit Sharma and then Gill and then Virat Kohli. आज आपने उनको सिलेक्ट किया था. मैंने चोरी 20-25 रन सुने थे.
फिर ये पहले 50 भी सुना था, 100 नहीं सुना था। ये 100 पे बात करते हैं, पहले रोहित की इनिंग्स देख लेते हैं। एक दफा फिर कप्तान ने इंडिया के बेहतरीन तरीके से स्टार्ट दिया अपनी टीम को, एंड आई मीन यू नो दैट्स लाइक ही सेट्स द टोन अप फॉर द एंटायर बैटिंग दैट इज कमिंग। Absolutely. I mean, they were 87 for none. He just played some phenomenal shots. This guy, he's one of my favorites. Not just mine. I suppose he's got admires all over the world. But क्या शॉटे मारते हैं? भाई ऐसे लगता है वो स्लो मोशन में बॉलिंग हो रही है। पहले ही पता है कि शॉर्ट बॉल आ रही है, अब मैंने इसको पुल कर देना है छक्के के लिए। स्वीप मारते हुए भी कोई डिफिकल्टी नजर नहीं आ रही है, और कितने आराम से देखें। और जो जिस पे आउट हुआ है वो कंट्रोल शॉट मारी है। अगर ये चौका मारने चले गए, ऊंचा ही मारता तो वो भी शायद बाहर ही जाती है। This true that would have also cleared the ropes. Well, once Rohit sets up the Indian team's batting lineup, तो पीछे जितने आ रहे हैं वो फिर वो ऐसे ही आते हैं। इस रोहित शर्मा को रिलेट किया जा सकता है वाइट बॉल क्रिकेट में। वसीम भाई और मोइन भाई बेहतर बता सकते हैं। जब मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट आते थे, Yes. तो वो ऐसा मारते थे शुरू में, तो जब 3 नंबर पे रिकी पॉन्टिंग आते थे तो उनके लिए सारी खुला मैदान होता था। खुला मैदान होता था। 5 बॉलर्स मार खा के खड़े हुए होते थे और वो भी कहते थे आओ आओ। तो रोहित शर्मा जो है वही काम कर रहे हैं, और उनमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जोर उनमें बहुत है, बड़े बड़े छक्के मारते हैं, लेकिन इम्प्रोवाइज भी करते हैं। हाँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए आप देखें कि उनके 100 सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि वो इम्प्रोवाइज भी करते हैं। जैसे ही 10 ओवर के बाद जो है ज़्यादा फील्डर्स बाहर जाते हैं तो वो अपना गेम थोड़ा चेंज करते हैं। एंड तक दुक्के ले रहा था यार, 50 ओवर फील्डिंग की हुई थी। ये आप रियलाइज करें कि पहले 50 ओवर इन्होंने फील्डिंग की है, उसके बाद 90 पे ये दुक्के पे दुक्का लिए जा रहा था। दैट शोज दैट गाय इज फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेनेट कंप्लीटली। वो मैं तो बल्कि आई थिंक हियर्स अनदर थिंग जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो 80 से 100 पर गए हैं ना, वो जो आखिरी एक्सेलरेशन की है, यार मैं तो सेंचुरी के करीब आ गया हूं, तो टारगेट भी सही है सेंचुरी। दैट इज अ फिनोमिनल एक्सेलरेशन दैट ही इज एट। Yeah, there was, and then we got a pointer में के रन रेट से बॉदर नहीं किया यार। They were winning by 15-20 overs. सेंचुरी हो रही है, उन्हें दो 1 off, they were toying with the bowlers, they were enjoying the batting, and जब कोहली बैटिंग करने आया वो स्टार्ट के बाद it was only a matter of time. ये आपकी स्क्रीन पे लेकर आते हैं कोहली कर दिया ना, 3 रन एक्स्ट्रा करके छक्का मार दिया 97 पे। एक पे वो हंसा भी था जो इधर से वाइट बॉल हुआ, उसने छोड़ा क्यों है? अरे बाहर ने भी नहीं दिया वाइट बॉल। ये ओके एक तो ये कि जबरदस्त उनको 2 फ्री हिट्स मिल गई आते साथ ही। आज जब उन्होंने अपनी बैटिंग का आगाज किया है, तो यू नो दैट फ्री हिट्स, दोस 2 फ्री हिट्स रियली सेट हिम अप टुडे। मोइन? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने अपने इंटरव्यू में आप पोस्ट मैच यही कहा था कि आते किसी भी बैट्समैन को लाइक इतनी ऐसी सिचुएशन मिल जाए जिसमें फ्री हिट्स, नेचुरली कॉन्फिडेंस आ जाता है कोई भी बैट्समैन। बट कोहली की जो जो ये डिफरेंट ब्रीड है बैट्समैनों में, आते ही डोमिनेट करना शुरू कर देते, कोई बॉल मिस नहीं करता। लाइक अगर कहीं इम्प्रोवाइज भी करना हो तो चांस ज़रूर लेता है ये। कहीं भी इसको मैंने आज तक नहीं देखा कि इन्होंने डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेली हो। हमेशा इनका स्ट्राइक रेट जो है वो अबव नजर आता है 100 से। तो आई थिंक एक क्वालिटी प्लेयर। ग्राउंड भी बड़ा पसंद है। ये तीसरी सेंचुरी, एवरेज 78 4800s now शेबी, और 254 रन्स भी बनाए हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन अ और टेस्ट one away मैच। from the great man's record 49 सचिन तेंदुलकर का। I think he's going to surpass that by a lot. He's super fit. Yeah, He's got a lot of cricket to go with him. There's no question about it. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपने बड़ी जो बात की कि 50 ओवर फील्डिंग के बाद एंड में वो दुखियां ले रहे थे। ये दुखियां आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। ये जब वो 50 ओवर की फील्डिंग कर चुके थे और अपनी सेंचुरी के वो थे। Look at this. Look at the He running. was on 92 वो देखे स्कोर कार्ड, and after fielding for 50 overs in that heat and then batting, that shows extreme fitness जिसे कहते हैं ना। Fitness doesn't mean एक जो बहुत ही अच्छी बात है रनिंग द बिटवीन द विकेट, स्ट्राइकर पे एंड पे कोहली ने शॉट खेला है और उसने क्रीज जल्दी कवर कर लिया रादर देन कि वो नॉन स्ट्राइकर पहला तेज लेंथ है। आउट रन कर दिया। एक और चीज़, दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, आई थिंक समथिंग टू बी नोटेड फॉर यंग प्लेयर्स लॉट, उन्होंने पहले बाउंड्रियां मारने की कोशिश की है, नहीं लगी। जब नहीं लगी he quickly adapted. He said, okay, I'm going to run these twos. Yeah. That was very important to that awareness. उसमें ये है फ़खर भाई कि आपको टीम प्लान मिलता है जब आप अपने क्रिकेट खेलना शुरू किया या कोई भी स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया, तो वो आपका लर्निंग प्रोसेस है। तो वो लर्निंग प्रोसेस में तब आपने सीखना है कि अगर मैं एक चीज़ मुझे नहीं उस पर अबूर आ रहा, तो मैं उसको हासिल करने के लिए दूसरा बी प्लान मेरा क्या है, वो नहीं होगी मेरा सी प्लान क्या है। तो वो जो होता है ना गिव अप वाला,
गिव अप वाला एलिमेंट जो है वो आप इसी तरह सीखते हैं कि आप गिव अप नहीं करते जब तक आप अपना सब कुछ ना जो है दाव पे लगा दें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है उनसे ये सीखना कि अगर मैं ये नहीं काम कर पाऊंगा तो मैं ये करूंगा उस चीज़ को हासिल करने के लिए, मैं फिर ये करूंगा। मतलब आपने जान नहीं छोड़नी, आप किसी भी फील्ड में हो, ये जान ना छोड़ने वाला जो काम है ना, ये हर इंसान को सीखना प्रेजेंस ऑफ चाहिए। माइंड भी है कि आप जैसी मर्जी सिचुएशन है आप उसमें आपने प्रेजेंट आप रहेंगे तो आप कोई दूसरी ऑप्शन सोचेंगे, वरना नॉर्मली यही आता है कि यार मैंने हिट ही मारनी है और उसमें आप आउट भी होते हैं। विल टॉक मोर अबाउट विराट कोहली, स्पेशली जो उनकी फिटनेस के हवाले से एक दो सवाल हैं उस पर बात करते हैं, मगर इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा वक्फा। विल सी ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. News out of Pune, India winning this one and marching on. They're looking very, very good. With me in the Pavilion, I'm joined by four outstanding cricketing minds. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. और अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले विराट कोहली की इनिंग्स के बारे में बात कर रहे थे. Another superb innings. He's just, as Wasim rightly said, that it's like almost he's not from this planet. You know, aliens do walk amongst us, and if you want an example, I think Virat Kohli is the one. But let me just bring in this. There is a little bit of a question. कुछ बात हो रही है कि रिचर्ड कैटबरो जो एम्पायर थे जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो एक लेग साइड पे एक बॉल गई थी रसूम की, एंड आई थिंक वो वाइड उन्होंने नहीं दी. सो इस पे लेट्स टेक अ लुक एट दिस ऑन योर स्क्रीन. लेट्स ब्रिंग दिस अप एंड जस्ट सी. It's a white ball. सो आई एम सेइंग डिड ही मूव. इसका रिप्ले भी आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, स्लो मोशन में देखते हैं. देयर इज सम बॉल डिलीवर होने से पहले उन्होंने मूव नहीं किया, बट ये जो न्यू रूल्स हैं इसके अंदर आप अगर पोजीशन चेंज करते हैं राइट तो वाइट बॉल नहीं होता. इसमें पोजीशन चेंज नहीं की, तो आई थिंक ये क्लियरली एक वाइट बॉल था और मेरा ख्याल है कि एक गलती कह लें, मिस्टेक हुई है यहाँ पे, जो कि हो जाती है ह्यूमन बीइंग्स में. और 2 रन सिर्फ चाहिए थे तो शायद थर्ड अंपायर के पास भी उन्होंने रेफर नहीं किया इस डिसीजन को, कि मैच खत्म हो रहा था, कोई स्टेक पे नहीं थी यहाँ पे कोई भी चीज़. Anyway, I mean, I'm okay with it, but I think it was a white ball, and I think the umpire made a mistake there. Well, It looks like one of those genuine mistakes. Yeah, it was a white ball, sure. Because there's a little bit of shuffle that Kohli does do, and I'm sure in real time umpire को लगा हो कि शायद ये move हुए या नहीं हुए. शफल भी फीट मूवमेंट का Right. वो बिल्कुल नहीं था. क्योंकि जब बॉलर डिलीवर कर देता है बॉल और फिर आप अपनी पोजीशन एज अ बैटर चेंज करते हैं तो फिर वो वाइड बॉल नहीं होता. लेकिन उन्होंने कोई पोजीशन चेंज नहीं की थी और जो लेग स्टंप पे कोई स्टंप से, ये स्टंप से अगर यहाँ से भी बॉल चला जाएगा तो वो इट्स अ वाइड बॉल. It's a white ball. तो हो गई है जैसे आज here's a very interesting thing. जब ये बॉल हुआ है वसीम, आपने भी देखा था, कोहली ने फौरन बॉलर को घुरी टिकाई है कि तूने वाइट बॉल करा दी है. You know, his reaction was कि भाई आपने ड्रेसिंग रूम में रिएक्शन नहीं देखा. ये देखिए, look at that. There you go. And there you go. So Kohli has moved actually. इसके बाद ड्रेसिंग रूम का भी जो वो है वो भी देखना चाहिए. They also started laughing. Anyway, nothing. I don't think we should read too much into it. Umpires do make mistakes. This is for people who have nothing to do. I know exactly. Who live off this crap. I know. And then they can go nuts with it. Yeah, they do. So इसको ज़रा इतना सीरियस इसको लेने की नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि umpires do make mistakes. It happens. We've seen this. It's nothing special. Those of you who are watching this on YouTube, आप लोगों के बड़े सवाल आते हैं कि ये जो हम फुटेज जिसकी बात करते हैं और आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं और आपको YouTube पे नहीं नजर आता, आप लोगों को सिर्फ ये बताता चलो बिकॉज ऑफ द राइट्स इशू, ब्रॉडकास्ट राइट्स इशू, हमारे पास इसको डिजिटल के ऊपर दिखाने की इजाज़त नहीं है, मतलब हमारे पास वो राइट्स नहीं है. देयरफॉर जब आप देखते हैं YouTube पे तो यहाँ पर आपको फ्रीज फ्रेम नजर आता है. दैट्स द रीजन व्हाई, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल कीप कमेंटिंग ऑन दैट. लेट्स गेट बैक इनटू द गेम. विराट कोहली की फिटनेस की बात कर रहे थे. मिसबा, आप और हमारी टीम में शोएब, आप लोग यू वर टू वेरी फिट पीपल. यो टेस्ट की बड़ी बात होती है कि जी यो टेस्ट बड़ा ज़रूरी है, यो टेस्ट बड़ा ज़रूरी है. विराट कोहली ने अभी हाल ही में एक अपना जो है पोस्ट की कि जी उन्होंने यो टेस्ट में 17.2 स्कोर किया है, which was a very... Explain to our viewers firstly what exactly happens in a yo-yo test. What is yo-yo test? वो yo-yo test होता क्या है? Exactly क्या? Physically what is it that happens in a yo-yo and test? why it's important for this sport? मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ फिर आप बताइएगा. वसीम भाई, आपको याद है डैन कीजल एक ब्लीप टेस्ट लेके आए थे? हाँ, मैं उस वक्त नया टीम में आया था. हाँ बिल्कुल, वो याद है, वो हमने भी किए हुए हैं. ये उसका न्यू वर्जन है. ओके, अब आप बताएं. पहली बात तो ये है कि 17.2 नहीं होगा.
कि अगर विराट कोहली 17.2 कर रहा है तो फिर तो बहुत कम कर रहा है। ये मेरे ख्याल में 19 होगा या 20 होगा। नहीं 17.2 है। तो वो जो दो No, शटल्स है ना, no, 2 शटल्स उन्होंने एक्स्ट्रा किए हैं। वो What मैं is आपको the good दिखाता हूँ score? post What is the good score in yo-yo? Tell us the Like score, extreme- how it is. Meanwhile, I'll bring that out for you. that you tell. Fittest guy क्या करेगा? नॉर्मली इट्स अबाउट 17। लास्ट टाइम हमने 18 रखा हुआ था, तो मोस्टली हमारे सारे प्लेयर करते थे। अच्छा, और इसमें बेसिकली 20 मीटर का डिस्टेंस होता है ओके, और आपने ऑलमोस्ट कोई विकेट टू विकेट होता है वसीम भाई। अच्छा, विकेट टू विकेट होता है 22 यार्ड्स। 22 यार्ड से थोड़ा सा कम होता है 20 मीटर्स, इतना सा कम होगा, ऑलमोस्ट वही। तो आपने बेसिकली 8 सेकंड में 8 seconds. आना जाना करना होता है। 20 मीटर जाते हैं और वापस आते हैं 8 सेकंड में, और 10 सेकंड का रेस्ट होता है। 11वें सेकंड में आपने फिर दौड़ना होता है। And how many times you have to? But ये time तेज होते तकरीबन जाता है आपका वसीम जो भाई। 17 ये टाइम तेज होते जाता अच्छा, है। अच्छा। 17.2 जो होता है, ये तकरीबन मतलब 43 शटल्स बनती हैं। 43 अप एंड डाउन, Up and down. अच्छा, that's यानी how- 20 मीटर डबल करें तो 86 20 मीटर के वो। Sure. और बेसिकली रिकवरी टाइम है, रनिंग है, जस्ट लाइक क्रिकेट में, क्योंकि आप एकदम स्प्रिंट करते हैं, फिर आपने फ़ौरन उसको रिकवर करना है, Heart rate तो ऊपर, हार्ट रेट ऊपर और जल्दी रिकवरी होती है। जितने आप फिट होंगे, जितने आप ये ज़्यादा करेंगे, इट मीन्स कि आपका रिकवरी टाइम उतना अच्छा है। यानी आप 8-9 सेकंड के अंदर अगर उससे रिकवर कर जाते हैं, उस रन से जो आपने 40 मीटर दौड़े हैं, तो फिर गेम में आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपने 18 रखा था, सारे करते थे 18। कौन नहीं 18 था करता? अच्छा, नाम- उसमें भी हमें- लेवल्स भी तो है ना। लेवल 1, लेवल 2, लेवल हाँ, वो 5 increase होते जाता है, time और तेज हर होते लेवल का जाता है। स्कोर भी अलग तरीके से ग्रेड लेकिन लेवल में वही ये लेवल की बात कर रहे हैं। लेवल 17 है, लेवल 18 है। मैंने आपको बताया कि 17 इज़ 43 अप एंड डाउन 20 मीटर। राइट। ठीक है जी। 8 शटल्स फिर ऐड हो जाती हैं। लेवल 18 है तो 51 हो जाएंगी। लेवल 19 है तो उसके बाद फिर 8 40 मीटर ऐड हो जाएंगे वो उसमें। 59 हो तो जाएंगे। पाकिस्तान में हमारे रिजवान है, शाहीन है, बहुत सारे लड़के हैं जो कि लेवल 21 तक जाते हैं। Wow. दे आर सो फिट। 18 यासिर का बड़ा प्रॉब्लम था, वो उससे नहीं होता था 17 जब भी। तो जब 18 मैंने एक इसको क्या रखा, मैंने 18.4 रख दिया इसको। ठीक है। मुझे पता था, लेकिन अंदर मुझे था कि 18 करना है। यकीन करें यासिर भी 18 कर गया। तो उससे एक चीज़ अंदाज़ा होता है कि ये भी एक मेंटल बेसिकली ब्लॉकेज है आपकी, कि आप 2-3 शटल पहले जाके ना आप वैसे ही गिव अप कर देते हैं। राइट। तो वो मेरे ख्याल में ये मैं हमेशा फ़िटनेस की बात करता हूँ। देखें, फ़िटनेस फिज़िकल टेस्ट ज़रूर है, लेकिन ये फ़िज़िकल टेस्ट से ज़्यादा ये मेंटल ये मेंटल है कि गिव अप नहीं करना। मोस्टली मैंने देखे हैं क्रिकेटर्स के, जब आप उनको ऐसे टारगेट देंगे और असल टारगेट कम होगा, वो अचीव कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में मेंटली दैट्स वाई विराट, क्योंकि अपने आप को पुश करता है इस चीज़ को मैंने अचीव करना है। मुश्किल टाइम पे जब आप बिल्कुल लगता है कि अब एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा यार्ड जो आप उस टाइम दौड़ते हैं फॉर दैट विक्ट्री, यू आर ऑलवेज डिफरेंट एंड अहेड ऑफ अदर्स। ये हमें पता है कहाँ से सीखा था हम लोगों ने, जब हम लोग बूट कैंप हम लोगों ने काकुल में किया था। पाकिस्तान आर्मी के जी, उन्होंने हमें ये चीज़ दिखाई थी कि ब्लॉकेज जो है ना, वो आपके यहाँ है, आपकी बॉडी में नहीं है। इसको आप जहाँ पे भी लेके जाना चाह सकते हैं, जिस भी लेवल पे आप लेके जा सकते हैं। जब चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीते थे, आप लोग उस दिन काफी तारीफ कर रहे थे कि उस कैंप से बड़ा फर्क पड़ा था। बहुत फर्क पड़ा था। The whole वो team. आई विश के वो कैंप्स जो है ऑफ्टन Regularly. लगने चाहिए। Regularly. उससे बहुत एडवांटेज होगा, स्पेशली हमारे जो यंगस्टर्स हैं। मैं चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की इसलिए बात करूंगा कि मिकी आर्थर जो थे, उन्होंने एक बेंचमार्क रखा हुआ था 17.4 इन यो टेस्टिंग। जो उसको पास करेगा फिर वो कंसिडर होगा सिलेक्शन के लिए। इसीलिए उमर अकमल जो था वो वहाँ गए भी थे, लेकिन वो नहीं पास कर पाए, फिर वापस आए वो, और ही वाज़न्ट पार्ट ऑफ द टीम। तो बेंचमार्क ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आपका प्लेयर एटलीस्ट उसे ये पता हो कि इसीलिए आप देखें कि हम लोग कहाँ से मार खाते हैं। हम मार खाते हैं जब क्रंच सिचुएशन में मैच जाता है। बिल्कुल सही है। तो वो ये नहीं होता बॉडी नहीं साथ दे रही होती, वो दिमाग नहीं साथ दे रहा होता दिमाग नहीं आपका साथ दे कि यार मैंने अब इस हर्डल से कैसे निकलना
खेलना है। तो ये बिल्कुल क्राइटेरिया होना चाहिए, आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। अच्छा शोएब, इस पे मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि हमने जो डिज़ाइन किया था, हमने ये नहीं किया था कि ये 18 जो करेगा नहीं करेगा तो वो टीम में नहीं होगा, नहीं। डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इंड्योरेंस के भी बेसिकली ज़्यादा टेस्ट है। एक 1 किलोमीटर था, ये था, आप उसमें से कोई कर लें, उसके मार्क्स हैं कि आपने टोटल सारे जो टेस्ट है वो मिला के कितने % मार्क्स हैं। अगर ठीक है यहाँ आप 17 कर रहे हैं या लेस कर रहे हैं, कहीं और कवर करना है उसको। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट है, हो सकता है किसी की इंडोरेंस इतनी ना हो कि वो ये कर सके, किसी की स्ट्रेंथ अच्छी है तो वो उसमें कर जाएगा। एक बेंचमार्क जरूर होना चाहिए मिनिमम। बहरहाल भाई जो भी बेंचमार्क है विराट भाई का वो पता करें, क्योंकि वो बेंचमार्क बहुत हाई है, because he's super fit, and as Wasim pointed it out early, he fielded 50 overs, did his batting for 80-90 runs, did the doubles, and also he's a vegetarian. वो super vegan diet, proper vegan. There is a proper vegan diet for it, and I've seen that documentary on Netflix about all the vegan athletes that I've seen that too. It's an amazing An eye opener. बट जोकोविच की टोटली ऑपोजिट है। high protein. Djokovic also went on this vegan diet. Yeah. He started losing. So I think मतलब it's also the body type that adapts to like like I have a very different diet. कर लो दूसरी जो करनी है। होगी बात, अब आप करें, आपका टाइम है, आपका टाइम है, आपका मैंने उनसे पूछा कि जास्त है। There's a very spirited discussion we're having behind the scenes about the fitness test and the yo-yo test, and Misbah has some great insight. Sorry Misbah, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मिसबा ने कुछ कहा तो मैंने कहा एंड ऑफ डेज नाइट। फखर भाई ने तो सीढ़ी बंद कराई है ना, वो 23 लेवल पे बंद होती है। अच्छा। बकरी गल है कि मोटरसाइकिल ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਯੂ ਟਰਨ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। मैंने आज को भरेगी। मैं सीढ़ी तोड़ के पान के छोड़ देती है, याद रखिए। हाँ, इट गेट ये तो जहाँ लेके गए थे वो जमीन ही थले चली गई। चलो जी। All right, I think it's time to take a break because we are getting a little delirious here. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports in the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. The news out of Pune, India winning this one and moving on, marching on rather, very strong. Right जी, the way forward. हाँ जी, फिर कौन दस रहे way forward? मेरी एब्सेंस में कौन करता रहे way forward? बट सबने किया है, आप बताएं। मैंने किया, मैंने वे फॉरवर्ड है किसका, इंडिया का या बांग्लादेश का? बांग्लादेश का होगा because they need to get आई थिंक यहाँ हाथ उठा के बताया मुझे कौन बताएगा। ओके हाँ जी, जो लिंक मिसिंग है वो बैटिंग का, जो मिडिल ऑर्डर में हमने बात की है। एक तो मिडिल ऑर्डर को देखना पड़ेगा, जो डॉट बॉल्स हैं उनको कम से कम करना पड़ेगा। आगे जो मैचेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो वेन्यूज़ हैं सारे हाई स्कोरिंग गेम्स है। तो एक एडवांटेज तो बांग्लादेश को नज़र आ रहा है कि इनको एक अपॉर्चुनिटी बैटिंग में ज़रूर मिल सकती है। बट जो ओपोनेंट्स हैं साउथ अफ्रीका, नेदरलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके मुकाबले में मैं समझता हूँ काफ़ी टफ है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है यहाँ पे बांग्लादेश के लिए। बट ऑलवेज आई नो देयर इज ऑलवेज अनाउंस कर दे मुहिम में वेन्यूज। आपने इतना टाइम लगा के लिखा, मैं बताया ना, हाई स्कोरिंग मुंबई है, कोलकाता है जी, पुणे में आखिरी मैच दोबारा है फिर। सॉरी, देयर आउट ऑफ कंट्रोल। मैं 2 दिन में क्या गया हूँ, आउट ऑफ कंट्रोल भाई। वो ना वो देखिए, ये नाराज वो मोइन भाई आईसीसी से भी आगे निकल गए। यार नेक्स्ट टाइम मेरे से जास्त लेके बात करना यार। मोइन भाई उसने वेन्यूज बोले, मैंने बता दी ये वेन्यूज है, तो परेशान हो गया कि कैसे पता है आपको। नहीं पता नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि आप आईसीसी से भी आगे निकल गए। शुक्र है अगले वर्ल्ड कप तो प्लान ही दस्ता है। चलो बहुत अच्छे। राइट दोस्तों, आपसे कुछ लम्हों बाद आपकी खिदमत में पेश करेंगे आस्क द पवेलियन, हैशटैग आस्क द पवेलियन। ये आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इस हैशटैग के साथ अपने पैगामात, अपने मैसेजेस, अपने सवालात हम तक भेजिए और हमारे पैनलिस्ट उनका जवाब देंगे। हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, बट व्हेन वी कम बैक इट्स टाइम फॉर योर फेवरेट bit, and that's Ask the Pavilion. Don't go away. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 and the news out of Pune. India winning this one, marching on, and with that, वक्त हुआ है हमारी Pavilion में Ask the Pavilion का, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद are 4 former captains. I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Moin Khan, and Wasim Akram. And here you have it. Hashtag Ask the Pavilion आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। आप लोग अपने सवाल भेज सकते हैं। सवाल आपके आने शुरू हो गए हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन जास्ते। जास्ते जनाब। क्वेश्चन है उसामा की तरफ से, इट्स फ्रॉम मिसबा।
Mr. Bhai, I've heard that you did not miss cricket training even on the day of your walima. Is it so? तो क्या ये बात ऐसी है? बात नहीं है। बताओ उधर। बताओ उधर देख के बताओ उनको। वलीमे तो खाना नहीं होना। नहीं, वलीमे वाले दिन तो नहीं की। शुएब वलीमे वाले दिन तो नहीं की ट्रेनिंग, लेकिन अगले दिन की। हम जब नए नए टीम में आए ना, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, हमें बताया जाता था कि जी एक क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के सीनियर 70s के, वो जब मैच होता है ना, जब वाइफ आती है टूर पे, तो वाइफ को बिस्तर पे सुलाता है और ख़ुद वो नीचे फर्श पे सोता है। इतना प्रोफेशनल है। मैं सोचे आई वाज 18 ईयर्स ओल्ड, मैं दैट डजंट साउंड राइट। आई एम ऑल फॉर प्रोफेशनलिज्म, बट मेरा मतलब है फर्श पे क्यों सोना है? I have no idea. I don't want to even comment on that. because तुझे इजाज़त नहीं है। इजाज़त नहीं है। और ली भी नहीं है। मैंने लेनी भी नहीं इजाज़त। एम अम्मार गोंदल, आपका सवाल है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। एम अम्मार गोंदल पूछ रहे हैं, ग्रेट शो, ग्रेट पैनल, ग्रेट इनसाइट्स, थैंक यू अम्मार, अप्रिशिएट इट। दो सवाल हैं वसीम आपसे, उन्होंने पूछे, what helps a fast bowler in transferring momentum, a long jump or a high jump? And second, any drill to improve line and length? Two things he's asked. So, लॉन्ग जंप, हाई जंप, मुराद है कि वो जो आप जंप नहीं करते बिफोर इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। अब मेरा बिल्कुल जंप नहीं था, राइट, अब वकार का ऑपोजिट था, उसका बहुत लंबा जंप था। मैं जहाँ से छलांग मारता था, मैं स्किट करता था, वो लैंड करता था आके। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन लाइन लेंथ के लिए यार, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो इजी वे, यू गोटा टफ इट आउट, यू गोटा प्ले गेम्स में मैच ऑफ द, वही बैक ऑफ अ लेंथ जो हम लेंथ कहते हैं, वो उसकी प्रैक्टिस 6 गेंदें करके दिखा दो मुझे कोई बॉलर, यंग बॉलर, एक लेंथ पे एग्जैक्टली बैक ऑफ अ लेंथ विद इन द स्टम्प्स, वो 6 बॉलें तब होगी जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट या लंबी वर्जन खेलोगे और रेगुलर खेलोगे। Yep, all right. Misbah, you want to add anything into it? Because बड़ा टेक्निकल से सवाल किया है कि मैं ऊंची छलांग मारूं ज़्यादा। देखिए ज़ाहिर है वसीम भाई तो फास्ट बॉलर है, हमने तो जो कोचिंग के हिसाब से जो चीज़ हमें पड़ी है या जो उसमें बायोमैकेनिकली जो चीज़ है उसके मुताबिक ज़रूर बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा अगर आपका जंप ऊंचा होगा तो वो जब आप नीचे लैंड करेंगे तो आपका मोमेंटम इवन वो ब्रेक होगा, करेक्ट। तो आपका जो जंप है वो बड़ा वो फ्लो में होना चाहिए और आपका मोमेंटम आगे की तरफ जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत ऊंचा जंप किया है और आप जब लैंड हुए हैं तो सारी फोर्स जो पीछे से आप मोमेंटम लेके आए हैं रन अप से, वो वहीं पे आपके ख़त्म हो जाए और आप वो ट्रांसफ़र ना कर सकें। Alright, Wasim, you had another question. I have a question, a very random name. Obviously, उन्होंने तस्वीर भी पीकी ब्लाइंडर्स के हीरो की लगाई हुई है, टॉमस शेल्बी की। CCM उनका नाम है। वो पूछ रहे हैं आस्क द पवेलियन में स्लीपिंग स्केड्यूल ड्यूरिंग द पवेलियन। अपना बताओ, स्लीपिंग स्केड्यूल क्या है आपका? मिड में अगर हमें कोई ब्रेक मिल जाए तो जाके को थोड़ी देर सो लेते हैं। अभी मतलब अभी जब बाय द टाइम वी फिनिश वी गो टू बेड, आई गो टू बेड बाय 1 तकरीबन 1 बज जाता है। स्ट्रेट अवे नींद नहीं आती बिकॉज यहाँ से काम करके जाते हैं, थोड़ा वाइंड डाउन होना पड़ता है। आई वॉच स्टार्टेड बैकम्स डॉक्यूमेंट्री, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फन, वो देखता हूँ 15 मिनट और फिर मैं सो के मैं 7:30 बजे उठता हूँ बिकॉज मैं 8 बजे जिम जाता हूँ। That's incredible, by the way. और फिर मैं 10:30 मैं मोइन को पिक करता हूँ, बिल्कुल घर के साथ रहता है, कभी ये मुझे पिक करता है, देन वी कम हियर। All right, so your sleep cycle? अगर मेरी कमिटमेंट ना हो तो फिर मैं जल्दी सो जाता हूँ। कमिटमेंट कौन सी वाली? नहीं, अक्सर होता है, मैं पवेलियन की कर रहे हैं बिजनेस यार। करता हूँ। वो पवेलियन की रूटीन पूछ रहे हैं। पवेलियन की रूटीन मैं रूटीन बता रहा हूँ। जाने के बाद भी मुझे कोई ना कोई काम ऐसा हो, कोई अपॉइंटमेंट हो जाती है। बोले ना मैं तो अडियारी में बोलिया मैं। नहीं, यूजली 1-1:30 बज जाता है आजकल सोते हुए। जी भाईजान, मैं 3-4 बज ही जाते। लेकिन आने से पहले मैं सोया हूँ 3 घंटे। प्री शो किया था, उसके बाद मैं वापस गया, मैंने सोचा यार थोड़ी देर सो के जिम जाता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। चलो कोई नहीं, आई एम विद यू ऑन दैट वन, मैन, अंडरस्टैंडेबल। मोहम्मद मुबश्शिर पूछ रहे हैं, और ये सवाल चूंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों ने कल पाकिस्तान का मैच है उसके हवाले से क्योंकि बात की है, तो ये सवाल बार बार आ रहा है प्लेइंग 11 के हवाले से। उसमें उन्होंने कहा है कि शुड पाकिस्तान इंक्लूड फ़खर एंड उसामा मीर फॉर टुमारोज मैच वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन प्लेस ऑफ शादाब एंड इमाम। फ़खर का तो मेरा ख्याल है वो आ चुके हैं टीम से कि उनकी नी इंजरी का वो है, सो ही इज नॉट अवेलेबल। Guys, listen to me. Fakhar was injured. They had the same knee. I hope it's not the same knee. जो LPL Lankan Premier League में I was there with Candy, with Beat Love Candy team. He was with us as an opener, and he left before the semi-finals. कि पाकिस्तान के 3 मैच से अफगानिस्तान से, he also so उसको प्रॉब्लम थी उस नी में सब तब से, so it means he was carrying that injury, got into the World Cup as well. I hope
he gets better sooner. Okay. Wasim bhai, aapse sawal hai. Aditya Shukla, he's asking you, question to great Wasim Akram. Siraj has conceded almost double runs than Bumrah in past 3 matches. Is he an average bowler or Bumrah extraordinary performance make him look bad? And also if Siraj isn't bowling well, तो क्या धानी खेलेगा? भाई धानी नहीं खेल सकता. Of course, I know he wanted to add a little bit of humor, एंड में आके क्या नाम बताया था? Aditya Shukla. आदित्य में आके गांधी मारा ना. I'm just kidding. But a valid question. देखो, Jasprit Bumrah is someone special. Different action, good pace, and most importantly control. And Siraj is upcoming. He's got wickets. अभी एशिया कप में भी फाइनल में 6 आउट किए. विकेटें ले रहा है वो. 2 विकेटें लिए. Went for 66 and over, but he's taking wickets. सो हर कोई बुमराह नहीं बन सकता. सिराज को भी टाइम लगेगा वहाँ तक आने के लिए. बट जसप्रीत इज समवन स्पेशल इन दिस डे एंड एज. Right, and our questions are coming in. Ask the Pavilion. Anonymous hai. Question to everyone. Shadab is out of the squad and Osama Mir has replaced him. Who will be in your mind as vice captain? I don't think that is confirmed news that Osama has replaced. नहीं, for instance, he's saying hypothetically अगर ये हो जाए तो कौन करेगा कप्तानी? Senior most ही होता है. Rizwan is there. Shaheen Rizwan is there. Rizwan probably. Rizzi probably. All right. अच्छा, so ask the Pavilion. मेरा सवाल फ़खर भाई आपसे है कि फ़हद इस्लाम आपका सवाल आया है. फ़हद इस्लाम का सवाल है. मेरा सवाल फ़खर भाई आपसे है कि स्पोर्ट्स पर आईसीसी टूर्नामेंट्स टेलीवाइज होते हैं तो स्पोर्ट्स पर एशिया कप टेलीवाइज क्यों नहीं होता? फ़हद इस्लाम, एक्चुअली होता ये है कि हर टूर्नामेंट के और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके राइट्स यानी कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हकूक़ आपको हासिल करने होते हैं मैचेस दिखाने के लिए. ख़रीदना पड़ता है उनकी. कहीं पे आपको जाके बोली भी करनी पड़ती है. आपके कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं दूसरे चैनल्स वाले वो कम्पीट कर रहे होते हैं. तो हर टूर्नामेंट का जो है, अगर हमारे पास वर्ल्ड कप्स के राइट्स थे 2023 तक के, इसलिए हम आपके पास 3 लगातार साल, अगर आपने नोट किया हो, पेविलियन लेकर आ रहे थे. सो अगले साल दोबारा भी ये बिडिंग आनी है जनवरी फरवरी में दोबारा अगले वर्ल्ड कप्स के लिए. तो अगर हमें राइट्स मिलेंगे तो ऑफ कोर्स वी विल बी एबल टू शो इट. सो एशिया कप के राइट्स नहीं थे, देयरफॉर वी कुड नॉट शो यू द एशिया कप. हम दिखा तो रहे थे मैचेस एशिया कप के, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई विल जस्ट गिव यू मोर डिटेल्स. From Khalik Scorpio. Lovely. Salam to everyone. I watch your program regularly. My question to legend Wasim Akram, ये मैं पास से लगाऊं to rest of the panelists, is management could show fake injury to Wasim Jr. to replace him and with Abrar, and that could be a part of strategy. So Khalik अब ये कह रहे हैं कि ये cheating करके हम part करें strategy का, झूठ बोलें दुनिया को. Guys, come on. Yeah, we're better World than Cup. Yeah, we are better than that. ये thinking is not even the right thinking. I don't know where we are going. Also, Wasim Jr. is a very talented cricketer. Yeah. And have high hopes from him. More questions on the other side of the break. Stay with us. All right, welcome back to the Pavilion. मैं हूं फ़खर आलम. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 और hashtag Ask the Pavilion का सिलसिला हमारा जारी था. But खबर ये है कि हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया है and so we are going to have to wrap it up today. And tomorrow we have another very special match. It is Pakistan that is colliding with Australia. एक मिनट रुक जाओ. आइडेंट आ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान. बड़ा मुकाबला है. कल बेंगलुरु से आपकी खिदमत में बराह रास्त पेश होगा 1:30 बजे. सो दिस इज द गेम. वी आर गोइंग टू बी हियर लाइव एट 11:30 AM. बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट गेम. जाने से पहले एक आखिरी सवाल. वसीम भाई, फखर भाई ने बिफोर बोर्ड द फ्लाइट फ्रॉम दुबई टू कराची इन्होंने एक पिक्चर पोस्ट की थी अपने सोशल्स पे. वो जरा दिखाएं और जरा नकल उतार के बड़े क्या fit लग रहे हैं. ये लगाई थी तस्वीर फखर ने. जूम इन करके दिखाएं यार. ये इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों पे फैलम B3 @FalamB3. लुक एट मी. और भी अनाउंस कर दो @FalamB3. प्लीज डोंट फॉरगेट टू. जब ये मैंने तस्वीर देखी सुबह, एक तो मैं डर गया और दूसरा इसको मैंने बताया कि पायन मुंह छोटा करन नाल ना वेट नहीं घट होंदा. तो मैंने फिर इसकी नकल की अकेले बैठे बैठे बाथरूम में. सुबह बोर हो रहा था. अब तुझे जास्त है.
2 days, just 2 days that I was away. This is the madness that I come back to. Don't worry, I'll put the house back in order. But thank you, gentlemen. Thank you, Shoaib. Like always, good night. Moin, thank you very much, Misbah. बहुत शुक्रिया आपका और आपके बारे में हम मेरे से गुस्सा कर दो सवाल कर रहे हैं। तुझसे मेरा प्यार तेरा good to have you back. गुड टू बी बैक, नहीं, गुड टू बी बैक। नहीं इधर तो गुस्सा चढ़ता ही नहीं है ना, इधर निकालेगा अरे इधर कैसे गुस्सा जो सकते हैं? मैं जैसे ही उन्होंने मेरी शक्ल की कॉपी की है, मैंने इन पे गुस्सा निकाल दिया, तो कल पता नहीं और किस किस किस्म की चीजें मार्केट में सामने। भाईजान, यू नो देयर इज ऑलवेज दिस थिंग। आप इस पोजीशन में गाइस, आपको इजाजत भी नहीं है। इधर, ऑलराइट, एंड विद दैट, good night.